శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః
ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த ஆதிகம் கர்ம நிகிலம் ஏன சூத்ரிதம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசே நமஹ. ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்த. அத்ய ஸ்ரீ பகவதோ மகாபுருஷஸ்ய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணோः ஆக்ஞயா பிரவர்த்தமானஸ்ய அத்ய பிரம்மணः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి, మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षणां सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసితవక్షசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று திருமலையப்பனை செவித்துக் கொள்ளலாம். இந்த திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக வந்திருக்கும் பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ. அருணா, கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர். இதோ அந்த பகவானை செவித்து கொண்டு நாச்சிமார்களையும் செவிக்கலாம்.
இன்று வெள்ளிக்கிழமை சதயம் நட்சத்திரம். விசேஷமான இந்நாளிலே அஷ்டமி திதி. ஆக பகவானையும் தாயார்களையும் சேவித்து கொண்டு கல்யாண உற்சவத்திற்காக செல்லலாம். அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட தலங்கள் 108. அந்த 108 தலங்களிலே மோக்ஷபுரி என்று சொல்லக்கூடிய தலம் காஞ்சிபுரம். அதாவது அந்த காஞ்சிபுரத்திலே அத்தி வரதராஜர் கோவிலும் வரதராஜர் கோவிலுமாக மிகவும் சிறப்பு பெற்று ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டது. அந்த கோவிலிலே வரதரை சற்று நினைத்து பார்க்கலாம். இதோ சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் நமக்கு காப்பாற்றி தருபவர் விஸ்வக்சேனர். அந்த விஸ்வக்சேனருக்கு முதல் ஆராதனை, அடுத்தது சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனை சேவிக்கலாம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாசனம் ஆரம்பமாகிறது. வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமாகிய இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அர்ச்சக சுவாமி முதலில் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம். பகவானே திருவேங்கடவனே विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तषु जमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं शुचिरगं सुशर्माम् इदमापशिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञगाः पाशा वितताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि ऊर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् किजामहे त्वा विश्वेशतात्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिः प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा
तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवाकं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात्रविणसस्तुरस्य त्रविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो त्रविणोदारासुते दीर्घवायुः भद्रं कर्णेभिशृणुकामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्त्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतो भव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धगन्तः श्रुतञ्जीवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयोभवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनगथाचनः ओं पवमानस्सु वर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता सुपुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुकुम्रणं यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विदितमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनः देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमयो भूः त्यावा पृथिवी पगसापयोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुतुघाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदामूर्चगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां
दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्ति जम्भोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वना नागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா. திருமலையப்பனை இங்கே செவிக்கும் பொழுது அங்கே காஞ்சி வரதரை பற்றி சற்று செவிக்கலாம். பக்தர்களே, அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்று பெயர். ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்ட 108 திவ்ய தேசங்களில் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலும் ஒன்று. இங்கு அனந்த சரஸ் குளத்தில் புகழ்பெற்ற அத்திவரதர் பள்ளி கொண்டுள்ளார். 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பக்தர்களுக்கு இவர் காட்சி அளிக்கிறார். இந்த தலத்தை பூதத்தாழ்வார் 2 பாசுரங்களாலும், பேயாழ்வார் 1 பாசுரத்தாலும், திருமங்கை ஆழ்வார் 4 பாசுரங்களாலும் பாடியுள்ளனர். இந்த கோவிலில் ஐராவதம் என்ற தேவலோக யானையே மலையாக நின்று பெருமாளை தாங்குகிறது. இதனால் இந்த தலத்திற்கு அத்தகிரி என்ற பெயரும் உண்டு. அப்படி அங்கே யானை தாங்கியதால் அத்தகிரி என்றும், இங்கே வேங்கடவனை தாங்கியதால் வேங்கடகிரி என்றும், வேங்கடாச்சலம் என்றும், அப்படிப்பட்ட அந்த வேங்கடவனுடைய கோவிலிலே நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, மன தூய்மை பெறுவதற்காக பிரம்மா காஞ்சிபுரத்திலே யாகம் நடத்த விரும்பினாராம். அதில் பங்கேற்க விரும்பிய மனைவி சரஸ்வதியை அவர் அனுமதிக்கவில்லை. மற்ற 2 மனைவிகளான சாவித்ரி, காயத்ரியை அழைத்து யாகத்தை நடத்தினாராம். இதனால் கோபம் கொண்ட சரஸ்வதி பூலோகத்தில் வேகவதி என்னும் ஆறாக மாறி யாகத்தை தடுக்க முயற்சி செய்தாள். இதனால் மகாவிஷ்ணுவிடம் சரணடைந்தார் பிரம்மா. அவர் சரஸ்வதி நதி பாயும் வழியில் பள்ளி கொண்டு தண்ணீரின் ஓட்டத்தை தடுத்தார். பிரம்மாவின் வேண்டுதலை ஏற்று யாக குண்டலத்தில் இருந்து புண்ணிய கோடி விமானத்துடன் மகாவிஷ்ணு தோன்றினார். அவரே இக்கோவிலில் வரதராஜ பெருமாளாக இருக்கிறார். அத்துடன் அத்தி மரத்தாலான பெருமாள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்தார் பிரம்மா. அந்த ஸ்ருங்கிபேரர் என்னும் முனிவரின் மகன்களாக ஹேமன், சுக்லன் என்பவர்கள் கௌதம முனிவரின் சீடர்கள். இவர்கள் பூஜைக்காக தீர்த்தம் கொண்டு வந்த பொழுது அதில் பல்லி இறந்து கிடந்ததாம். அதை கண்ட முனிவர் இருவரையும் பல்லியாக மாறும்படி சாபமிட்டாராம். அவர்கள் பிராயசித்தம் கேட்டபொழுது காஞ்சி வரதராஜ பெருமாளை வழிபட சொன்னார்களாம் கௌதமர். அதன்படி இங்கு தங்கி வழிபட்டு பலன் பெற்றனர். அப்படி அங்கே வரதராஜனை சேவிப்பதற்காக செல்லும் பொழுது நாம் அந்த பல்லிகளையும் சேவிக்கலாம் என்றும், இங்கே திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு ஆன ரக்ஷா பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. வேங்கடவா கோவிந்தா, திருமலை வாசா கோவிந்தா கோவிந்தா. श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबंधन पूजां च करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृत शुचीनागं शुचिकुंभिनोम्यत्फरगं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृत साप आगञ्चु जन्मानः शुचयः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहत्तां स्वयंवरक्रे मृतगे मृतागाम्। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। शेषाग नमः इदमासनं, शेषाग नमः पात्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाग नमः गुरोपहारं निवेदयामि, पानीयं समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि,
शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो अवमीतामश्विना भगस्वस्ति देवगितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तर्भव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्ठनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहे माम् अम्भो मुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம், காப்பு கட்டுதல் என்று கூறுவார்கள். தாயார்களுக்கும் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கும் இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. காஞ்சியிலே அத்திவரதரை செவித்தோம். அதேபோல் அந்த காஞ்சிபுரம் கோவிலிலே வரதராஜ பெருமாள் கோவிலிலே 2 பல்லிகள் நீரில் விழுந்ததினால் அவற்றிற்காக சாபம் எடுத்தவர் கௌதம மகரிஷி. அந்த பல்லிகளை சேவிக்கும் பொழுது அவைகளுக்கு விமோச்சனம் கிடைக்கும் என்றும் பக்தர்கள் சேவிக்க வேண்டும் என்றும் கூறுவார். அப்படி அந்த அவர்கள் பக்தர்கள் உங்களை தரிசித்தாலும் உங்களுடைய தோஷம் போரும் தீரும் என்றும் பெருமாள் வரமளித்தாராம். அந்த கோயிலில் இவர்கள் தங்கம் வெள்ளியாலான பல்லிகளாக உள்ளனர். கர்ப்ப கிரகத்திலே மூலவர் தேவராஜ பெருமாள் அத்தகிரி மீது நின்ற கோலத்திலே மேற்கு நோக்கியபடி இருக்கிறார். உற்சவரின் பெயர் பேரருளாளன், தாயாரின் பெயர் பெருந்தேவி தாயார். குளத்தின் கிழக்கு திசையில் சக்கரத்தாழ்வார் 16 கரங்களுடனும் செங்கு சக்கரம் ஏந்தியபடி நிற்கிறார். இவரை வழிபட்ட பிறகே மூலவரை சேவிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த கோவிலில் அனந்தசரஸ், பொற்றாமரை என்ற 2 குளங்கள் உள்ளன. தல விருட்சம் அரசமரம். வைகாசியில் நடக்கும் கருட சேவையும் தேரும் மிகவும் சிறப்பானவை. ஆகவே இந்த கோவிலிலே உள்ள அத்திவரதரை செவித்து கொண்டு மானசீகமாக இதோ இங்கே எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவிக்கலாம். பக்தர்களின் கஷ்டங்களையும் அவர்களுடைய கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுபவன் திருமலையப்பன். அப்படி அவர்களை ரட்சிக்கும் பரந்தாமன் இதோ அருளாளனாக, பேரருளாளனாக வேங்கடாச்சலத்திலே நின்று கொண்டு சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். திவ்ய தேசங்கள் 108. அதிலே அந்த பகவானின் அந்த 108 தலங்களிலும் ஒவ்வொரு நாமத்தை கொண்டு ஒவ்வொரு தலமாக பகவான் நமக்கு அருளி செய்வார். அப்படி இந்த திருமலையிலே தினந்தோறும் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக பெருமாளுக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த தலத்திலே இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். பகவானை உகப்பிக்க ஒரே ஒரு துளசி பத்திரம், அதாவது ஒரு துளசி இலை போதும் என்கிறார்கள். அந்த துளசி இலை உள்ளன்போடு அவனுக்கு சமர்ப்பித்தால் அவன் அதை ஏக மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். துளசிக்கு அப்படி என்ன ஏற்றம் என்று கேட்கிறான். இதற்கு பிரம்மாண்ட புராணத்திலே அற்புதமான ஒரு கதை உள்ளது. அதாவது அகலாமல் இருக்கும் மகாலட்சுமி தாயாரை விட ஒரு படி மேம்பட்ட சிறப்பு துளசி தேவிக்கு உண்டு என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றன. அதனால்தான் துளசி வளர்ப்பவர்கள் வீட்டிலே எந்த தோஷமும் ஏற்படுவது கிடையாது. துளசி மாலையை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் பகவானே மகாலட்சுமியை தனது துணைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். ஆண்டாள் நாச்சியார் பகவானோடு உள்ள காதலை வெளிப்படுத்தும் பொழுது, எனக்கு காட்சி கொடுக்காமல் இருக்கின்றானே பகவான், என்னால் முடியவில்லை, நான் உயிர் தரிக்க ஒரே வழி,
அவன் அணிந்து கொண்டிருக்கும் துளசி மாலையை கொண்டு வந்து எனக்கு வீசிவிடுங்கள் என்று சொல்வதில் இருந்த துளசியின் ஏற்றம் நமக்கு புரிகிறது. பகவான் நந்தவனத்திலே மகாலட்சுமியோடு உலவு வரும்பொழுது எத்தனையோ விதமான வண்ண மலர்களை எல்லாம் பரிவோடும் மகிழ்வோடும் பார்த்து கொண்டே செல்வானாம். ஆனால் ஒரு துளசி செடி இருந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு அவன் அதே இடத்தில் நிற்பானாம். அவ்வளவு ஈடுபாடு பகவானுக்கு அந்த துளசியின் மீது. அப்படி துளசி மாலை என்றால் மிகவும் விருப்பம் கொண்டவன் இதோ தன்னுடைய ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே அந்த ரக்ஷையை ஏற்றுக்கொண்டான். அடுத்ததாக பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நிவர்த்திக்கிறார். கண்ணன் வந்தானா திருப்பாவையிலே ஒரு கட்டம். உள்ளே படுத்திருக்கக்கூடிய பெண்ணிடம் வெளியே திருப்பாவை நோன்புக்கு அழைக்க வந்த பெண் பிள்ளைகள், நீ ஏன் இன்னும் எழுந்து வரவில்லை? ஓஹோ, உனக்கு கண்ணன் உன் வீட்டிற்கு வந்திருப்பான் போலிருக்கிறது. நீ அவனோடு கலந்து பரிமாறி இருப்பாய் போலிருக்கிறது. அதனால் தான் ஆனந்தத்தோடு படுத்து கொண்டிருக்கிறாய். நாங்கள் எழுப்பினாலும் நீ வெளியே வந்து கதவை திறக்காமல் இருக்கிறாய் என்று சொல்லுவார்களாம். உள்ளே இருக்கக்கூடிய பெண், அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, கண்ணனாவது இங்கே வருவதாவது. அது சரி, இவ்வளவு நேரம் உறுதியோடு கண்ணன் வந்ததாக சொல்லுகிறீர்களே, எதை வைத்துக்கொண்டு கண்ணன் இங்கே வந்திருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது வெளியே இருக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளைகள் கூறுவார்களாம், அதுதான் துளசி மாலையின் மனம் நாசியை துளைக்கிறதே. துளசி எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அந்த இடத்திலே பகவான் இருப்பான் என்பது எங்களுக்கு தெரியாதா என்றால், ஆக துளசி இருக்கும் இடத்தில் பகவான் நிச்சயம் இருப்பானாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொடுத்தார். அடுத்ததாக பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷை அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பிராட்டிமார்கள் இருவருக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நடத்தி முடித்தார். இதோ சேவிக்கலாம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியை. அப்படி துளசிக்கு ஏற்ற தலம் தந்த தலம், அதற்கு காரணம் உண்டு. துளசி தேவி பகவானிடத்தில் நீங்கள் மகாலட்சுமியை மட்டும் மார்பில் தாங்குகின்றீர்கள், அதை போன்று சிறப்பு அடையாளங்கள் அடியாளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்க திருமால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வரம் தருகிறார். விரைவில் பூமியில் மகாலட்சுமி அவதரிக்கப் போகின்றாள். அதற்கு முன்னால் நீ அந்த தலத்தில் துளசி செடியாக அவதாரம் செய். உன்னுடைய மடியில்தான் மகாலட்சுமியை பூமாதேவியின் அம்சமாக அவதாரம் செய்யப் போகிறாள் என்பதால் தான் மகாலட்சுமியை விட உனக்கு ஏற்றம் அதிகம். அவளுக்கு முன் நீ அவதரித்தவளாகி விடுகின்றாய். எனவே உன்னுடைய மாலையை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் நான் மகாலட்சுமியை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்றாராம் பகவான். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. அக்னி ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. யக்ஞ ரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா, அக்னி பகவானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த அக்னி பகவானை சேவித்து கொண்டு ஹோமத்தை வளர்க்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை தொடர்ந்து இறுதியிலே பூர்ணாகூதியுடன் அந்த ஹோமத்தை முடிக்கிறார். திருமலையிலே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏழ்மலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அக்னி ஆவாகனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். திருமலை வாசா வேங்கடவனே சப்தகிரிநாதனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று
अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमदस्सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु सादन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणयो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाग्नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितः प्रहरेम वीतगे पूषा ते ग्रन्थिं विश्यतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतमुदीच्चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नव प्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि गजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो जनक्ति स वो जनक्तुं संविशन्तां दैवीर्विषः पात्राणि देवगिच्कागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओम प्रजापतिमावाहगामि इंद्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अप उपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्नमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेव अनावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्री विष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यन्द्रुप्यधिष्ठयामि चरुन्द्रुप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगुं रक्षोऽन्तरिता अरातगः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ठा आराधगः चित्पति स्वापनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्वर्थस्पदेभ्यवर्धगतास्मान् पृथिगा पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नात्येन समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्याम् ॐ श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग
स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो प्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुच्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగన
अथ भगवतो महापुरुषस्यां श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो भागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिरद क्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगण गाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दक शार्ङ्गादि पञ्चागितधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेग प्रवरान्विता भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्योह विभेदेन प्रवर्तमानस्याम् परतत्व विभव व्योह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्विता भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् समस्तदेवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम्
आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारशेग प्रभरान्विता भारद्वाज स गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायां अखिलशाखात्यागिनों अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रभरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणीत्वभद्रगारुषेग प्रवरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेशयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஏசாய கோவிந்தா கோவிந்தா திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம் மதுபர்க்க பூஜை திரைப்பிடித்தல் வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. தாயார்களுடைய மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்ய உள்ளார். அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அதற்கு பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அப்படி இந்த பூஜையின் வேளையிலே திருத்துழாய் அதாவது துளசியைத்தான் உபயோகிக்கிறார்கள். அக்ஷதைகளுடன் திருத்துழாய் கலந்தால்தான் அந்த பூஜைக்கே ஒரு தனி மகத்துவம் என்று. அப்படி அந்த திருப்பாவையிலே கண்ணன் வருவானா என்றும் வந்தான் என்பதற்கு அடையாளமாக அந்த துளசியை அவர்கள் கண்டுபிடித்து கண்ணன் வந்துள்ளான் என்றும் கண்டு கொள்ளுகிறார்கள் அந்த ஆயர்பிடி மக்கள். அப்படி அந்த திருத்துழாய்க்கு அவ்வளவு மகத்துவம். அதற்கு காரணம் உண்டு. என்னவென்றால், ஒருமுறை துளசி தேவி பகவானிடம் நீங்கள் மகாலட்சுமி மட்டும் மார்பில் தாங்குகிறீர்கள், அதை போன்ற சிறப்பு அடையாளங்கள் அடியாளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்க திருமால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வரம் தருகிறாராம். விரைவில் பூமியில் மகாலட்சுமி அவதரிக்கப் போகின்றாள். அதற்கு முன்னால் நீ அந்த தலத்தில் ஒரு துளசி செடியாக அவதாரம் செய். உன்னுடைய மடியில்தான் மகாலட்சுமியே பூமாதேவியின் அம்சமாக அவதாரம் செய்ய போகின்றாள் என்பதால் மகாலட்சுமியை விட உனக்கு ஏற்றம் அதிகம். அவளுக்கு முன் நீ அவதரித்தவள் ஆகிவிடுகின்றாய். எனவே உன்னுடைய மாலையை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் நான் மகாலட்சுமியை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று வரம் தர துளசி தேவி அப்படியே பூலோகத்தில் ஒரு துளசி செடியாக அவதரிக்க அந்த செடியின் மடியிலே மகாலட்சுமி தேவி சிறு குழந்தையாக அவதரித்ததாக தலபுராணம் கூறுகிறது. அந்த அற்புதமான தலம்தான் திருவிண்ணகரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற திவ்ய தேசங்களில் ஒரு தலம். ஒப்பிலியப்பன் கோவில்.
தென் திருப்பதி என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோவிலில் 108 திவ்ய தேசங்களில் 13வது திவ்ய தேசமாக அந்த பகவான் அங்கே எழுந்தருளி இருக்கிறார். உப்பில்லாத உணவே போதும் என்றும் இந்த தலத்திலே மார்க்கண்டேய மகரிஷி மகாலட்சுமி தாயார் தனக்கு குழந்தையாக அவதரிக்க வேண்டும் என்று திருமாலை குறித்து தவம் இயற்றினாராம். அவர் தவத்தை பெருமாள் ஏற்றுக்கொண்டார். ஒரு நாள் அவர் நந்தவனத்திலே பெருமாளுக்கு மாலை சூட்டுவதற்காக மலர்களை சேகரிக்க சென்ற பொழுது துளசி செடியின் அடியிலே ஒரு அழகான பெண் குழந்தையை கண்டு மகாலட்சுமி அவதரித்திருக்கிறாள் என்பதை உணர்ந்து அந்த குழந்தையை வளர்த்து வந்தார். முனிவரின் ஆசிரமத்திலே மகாலட்சுமி தாயார் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வந்தாராம். மிகவும் செல்லமாக அந்த பெண்ணை முனிவர் வளர்த்து வந்ததால் சமைப்பதோ வீட்டு வேலைகள் எதுவும் அவளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, அவளுக்கு தெரியாது. இப்படி இந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு பங்குனி மாதம் திருவோண நட்சத்திரம் ஏகாதசி திருநாளில் ஒரு பெரியவர் மார்க்கண்டேய மகரிஷியிடம் ஆசிரமத்திற்கு வந்து அவருடைய பூஜைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு தனக்கு அவருடைய பெண்ணை கட்டித்தரும்படி கேட்டவுடனே மார்க்கண்டேய மகரிஷி அதிர்ச்சி அடைந்தாராம். நீங்கள் வயதானவர், கிழவர், நீங்கள் இப்படி ஒரு சிறு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படியாக கேட்பது முறையா என்று கேட்க, அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, நான் பெரியவனும் அல்ல, எனக்கு அவசியம் உன்னுடைய பெண்ணை திருமணம் செய்து தர வேண்டும் என்று வற்புறுத்த, அப்பொழுது இது என்ன சோதனை என்று முனிவர் தியானத்தில் அமர்கிறார். அப்பொழுது சாட்சாத் அந்த பெருமானே முதியவராக வந்திருப்பது அவருடைய உள் உணர்வுக்கு தெரிகிறது வியப்போடு. பகவானே என்று அழைத்து வெளியே வந்த பொழுது சங்கு சக்கரங்களை தரித்து கொண்டு கோட்டி சூரிய பிரகாசத்தோடு முனிவருக்கு பெருமாள் காட்சி தருகிறார். இந்த காட்சியை பெறுவதற்காகத்தானே 1000 ஆண்டுகள் தவமிருந்தேன் என்று சொல்லி தனது மகளை பெருமாளுக்கு கன்னிகாதானம் செய்து கொடுத்த பெருமையை அடைந்தார் முனிவர். அப்பொழுது அவர் சொன்னாராம், பகவானே, என்னுடைய பெண்ணை நான் செல்லமாக வளர்த்து விட்டேன். அவளுக்கு உணவு சமைக்க தெரியாது. அப்படியே சமைத்தாலும் அதில் உப்பு போன்ற சுவைகளை சேர்க்க தெரியாது. நீங்கள் இந்த குறைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாராம். குறைகளை நிறையாக கருதுகின்ற பகவான், முனிவரே, நீர் கவலைப்பட வேண்டாம். உன் பெண் எப்படி சமைத்தாலும் எனக்கு அமுதமாகவே இருக்கும். உப்பு போட தெரியாது என்று தானே சொல்லுகிறீர்கள். இனி நான் உப்புள்ள பண்டத்தையே சாப்பிடுவதாக இல்லை, மகிழ்ச்சித்தானே என்று அந்த முனிவர் தாயாரை பெருமாளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்த இந்த தலத்திலே எப்பொழுதும் பிரசாதத்தில் உப்பு சேர்ப்பதில்லை. அவ்வளவு சிறப்பான அந்த விண்ணகரத்திலே அதாவது அந்த முனிவருக்கு மகளாக மகாலட்சுமி தாயாரை பெருமாளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தவர் அந்த முனிவர். உப்பிலி அப்பனா ஒப்பிலி அப்பனா என்று பார்த்தால் பெருமாளுக்கு உப்பில்லாத பெருமாள் உப்பிலியப்ப பெருமாள் என்று திருநாமம் வந்ததாம். அதனால்தான் இது அவருடைய முறையான திருநாமம் அல்ல. அவருடைய திருநாமம் ஒப்பில்லாத பெருமாள் என்பது, அதாவது ஒப்பற்றவன் என்றுதான் அவருடைய திருநாமம். திருமலை அப்பனை போலவே நீண்ட நெடிய தோற்றத்தோடு நின்ற கோலத்திலே சங்கு சக்கர கதாதாரியாய் ஒரு கரத்திலே கவலைப்படாதே என்று காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார். உற்சவருக்கும் தாயாருக்கும் ஒரே பெயர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த தலத்திலே 50 அடி உயரம் 5 நிலைகளுடன் கிழக்கு நோக்கி கம்பீரமாக காட்சி தரும் ராஜகோபுரத்தை கடந்தால் வலதுபுறத்திலே தூலாபாரம் செலுத்தும் இடம், வெளிப்பிராகாரத்தின் வடக்கிலே ஆழ்வார்கள் சன்னதி, அடுத்து கண்ணன் மற்றும் ஸ்ரீராமர் சன்னதிகள் தென்புறம் ராமானுஜர் சன்னதி, மூலஸ்தானத்தை நோக்கி கருடன் சந்நிதி, வீதியிலே இருந்து ஆலயத்திற்கு புகும்பொழுது சிறிய கண்ணன் சன்னதியையும் நாம் சேவிக்கலாம். இப்படி இந்த தலத்திலே பகவான் 5 விதமாக காட்சி தருகிறாராம். நம்மாழ்வார் இந்த தலத்து பெருமானை என்னப்பன், பொன்னப்பன், மணியப்பன், முத்தப்பன் என்று பெயர்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகிறாராம். அந்த அழகான பாசுரத்திலே என்னப்பன் எனக்காய் இருளாய் என்னை பெற்றவளாய், பொன்னப்பன் மணியப்பன் முத்தப்பன் என்னப்பனுமாய், மின்னப்பொன் மதில் சூழ் திருவிண்ணகரம் சேர்ந்த அப்பன், தன்னப்பார் இல்லப்பன் தந்தனன் தனதாள் நிழலே என்று பிராகாரத்திலே மணியப்பனும் என்னப்பனும் ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் காட்சி அளிக்கின்றனர்.
மணியப்பனது பீடத்தின் இருபுறமும் சங்கு சக்கரம் அமைந்துள்ளது என்னப்பன் சந்நிதிக்கு முன்பு. புஷ்கரிணியின் மேற்கிலே பூமி நாச்சியார் அவதாரம் இடம் உள்ளது. இங்கு முத்தப்பனுக்கு மட்டும் சன்னதி இல்லை. ஒப்பிலியப்பன் சந்நிதியில் பொன்னப்பரும் முத்தப்பரும் உற்சவர்களாய் சேவை தருகிறார்கள். கருவறை வெளியே சுவாமி தேசிகன் சந்நிதி உள்ளது. வெளி மண்டபத்தில் தென்புறத்திலே ஹனுமார் சன்னதி உள்ளது. இவ்வளவு சிறப்புமிக்க இந்த விண்ணகரத்திலே பகவான் நமக்கு அருளி செய்கிறார். அங்கே இதோ இங்கே அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார் கல்யாண உற்சவத்திலே வேங்கடவனாக. பக்தர்களே, இதோ அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை முடித்துக்கொண்டு மாங்கல்ய தாரணத்தை செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாங்கல்ய தாரணத்திற்கு செல்லலாம். ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. वेलयुनी कल्याण वेदिका वेलयुनी कल्याण वेदिका నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా జౌవన పుయాగము చేసినతడు నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు. कर्मांगम
औपासनाग्नौ प्रधानहोमं होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवाम् ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतानागुंसोऽस्य प्रजां मञ्चुतमर्चपाशात् तदयगं राजावरणो न मन्यता यथे जग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजां मञ्चुतमर्चपाशात् तदयगं राजावरणो न मन्यता यथे जग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजामस्येन यतु दीर्घमायुः अशोऽन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभि प्रबुध्यतां मियज्ञ स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोदं च स्वाहा आकोदिश्च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेधन्ता नातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतां सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रतानि पस्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवे वचक्षरादग्रस्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्रस्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्या श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरुतं यत्त्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहदङ्गरोधु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशदनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समिति सितेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वां घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ ऋतधानवित्वाननष्ट्वप्खृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अतितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहि देवताभ्योर्महागधास्मधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षत्ये जहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्कां दक्षिणागां प्रतीच्काम् उदीच्काम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां माच्यगन्तां पश्चिमतः परिधिमपनगाम् पश्चिमतः परिधिमपनगां दक्षिणतः परिधिमपनगां उत्तरतः परिधिमपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अप उपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पशुदयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वागा बलागा शतागा शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषें योमश्रवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागतिन्वधाम् आपो जनयथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகுத்தியை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஆண்டாள் திருத்துழாய் வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்டவள் பெரியாழ்வாரால். அந்த பெரியாழ்வார் பெண்ணிற்கு அனைத்து விதமான பாசனங்களையும் இயற்றும்படியும் மற்றும் மாலைகளை தொடுக்கும் விதமாக பயிற்சி கொடுத்தார். அதை அந்த 143 பாசுரங்களாக நாச்சியார் திருமொழியிலேயும் 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியங்களை செய்தாள். அதிலே தான் அந்த பகவானை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் கனவு கண்டதாகவும் தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். அப்படி வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது. திருவேங்கடமுடையானுக்கும் இரு நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்குமாக சேர்ந்து அந்த மாலைகள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ வேங்கடவனுக்கு அணிவித்த மாலையானது பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா 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 என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலை அணிவித்தார். அவருடைய திருவடிகளை செவித்துக்கொண்டு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க செல்கிறார். சப்தகிரி வாசனே வெங்கடவனே ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த வேங்கடவனுக்கு மாலையை அணிவித்தார். அவருடைய திருவடிகளை அடிபணிகிறார். அதை தொடர்ந்து மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டிக்கு மாலை அணிவிக்கப்படுகிறது. அந்த மாலையை கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் பூமி பிராட்டிக்கு. இதோ சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கு அணிவித்தாள் தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி அந்த பிராட்டியினை சேவித்துக்கொண்டு அவருடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ இப்பொழுது 3 முறை அந்த மாலைகளை மாற்றம் செய்யப்பட்ட பிறகு ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம். அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் இதோ நிறைவு பெற உள்ளது. அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.